اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر اور زنا زادہ تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث رسالت ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ جب آگ بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیوں فرمایا، یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے بتوں کو توڑ دیا لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں سارے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر و نشر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو دیکھا نہیں گیا کیوں کر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوا سنا تھا، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ نمرود نے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے سر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا بت ہے وہ موجود ہے، جو کچھ ہوا سب اس کی نظروں کے سامنے ہوا۔ اس سے پوچھو، اگر یہ بول سکے اور اگر کچھ نہ بتائے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے، کیونکہ کلہاڑا اسی کے کندھے پر ہے، اور اگر یہ بول نہیں سکتا اور بتانے سے مجبور ہے تو سمجھ لو کہ یہ لاشیں ہے، اس کا وجود و عدم برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے لوگوں پر نہایت اچھا اثر پڑا اور ان میں سے اکثر آپ علیہ السلام کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ واقعی اگر بت میں کوئی طاقت ہوتی اور یہ کچھ کر سکتے تو اپنوں کو سب سے پہلے انہیں بچانا چاہیے تھا، نیز یہ کہ سب سے بڑا جو بت ہے وہ تو موجود ہے، اگر اس میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دیگر ساتھیوں کی ضرور مدد کر لیتا۔ کتاب روضۃ الصفا میں ہے کہ جب مشرکین شرمندہ ہوئے تو اسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تو پھر ان کے متعلق بولنے کا اور نہ بولنے کا سوال ہی کیوں پیدا کیا؟ تمہارا یہ سوال بالکل عبث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ تم ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تف ہے تم پر کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان صورتوں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کر سب سربگربا ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تبلیغ کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ نمرود کو جب ان کی تبلیغ کا زور و شور معلوم ہوا تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کی تبلیغ سے نظام سلطنت ہی درہم برہم نہ ہو جائے بلکہ اس کی خدائی میں خطرے میں پڑ جائے گی، اس نے آپ علیہ السلام کو گرفتاری کا فیصلہ کیا اور انہیں گرفتار کرا دیا اور انہیں قید خانے میں بند کر دیا۔ عجائب القصص سے علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی صفحہ نمبر 87 میں ہے کہ نمرود نے ان کو گرفتار کرا کے ایک لوہے والے تندور میں بند کرا دیا اور اس میں بھرپور آگ لگوا دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا تو وہ جیسے کہ تیسے تھے، یعنی ان کو کوئی جلن اس آگ سے نہ پہنچی۔ نمرود نے حکم دیا انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے اور آپ علیہ السلام کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک روایت کی بنا پر 40 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 سال قید میں رکھا اور اس دوران میں انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے مقام کوفہ جو کوفہ میں ہے ایک 4 دیواری تیار کرائی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 فرسخ تھی اور اس کی بلندی 100 گز تھی، اور بے روایت روضۃ الصفا اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے، چنانچہ اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔
एक रिवायत में है कि ये 4 दीवारी 1 माह में पूरी की गई और चारों तरफ वो जलने लगी। जब इसके शोले भड़के तो इसके करीब कोई न जा सकता था, कोई परिंदा फिजाई वाला तक इस पर से गुजर ना सकता था। तिबरी में है कि आग को भड़काने में 2 साल लगे थे। इसी में ये भी है कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थी। आग तो रोशन कर दी गई, लेकिन अब कोई ऐसा रास्ता न था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके, क्योंकि कोई करीब जा नहीं सकता था। लोग इसी मशवरे में थे कि शैतान ने उन्हें मंजनीक बनाने का मशवरा दिया और बनाने की तरकीब बताई। जब मंजनीक तैयार हो गई तो इसने उसमें पहले एक बड़ा पत्थर रख कर फेंका। जब तजुर्बा ने बताया कि मंजनीक ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए और गले में भी तोके आहन डाला गया। फिर मंजनीक में बिठाकर उन्हें फेंका गया। एक रिवायत में है कि जब हाथ पांव बांधे गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बारगाहे खुदावंदी में हाथ उठाकर ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन लकल हम्दु व लकुल मुल्क। एक रिवायत में है उसी दौरान आसमान के मुअस्सिस फरिश्ते बारगाह खुदावंदी में हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि मालिक, मुझे जमीन पर एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम है जो तेरी वहदानियत की तबलीग कर रहे हैं। अब उन्हें भी नजर आतिश दिया जा रहा है। हमारे मालिक, आप इनको बचाने के लिए हमको हुक्म दे दे। हुक्म हुआ कि जाओ, अगर इब्राहिम तुम्हारी मदद कबूल कर ले तो बेशक तुम उनकी इमदाद करो। वो फरिश्ते जमीन पर नाजिल हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदद करने की ख्वाहिश की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर वो फरिश्ते आए जो हवा और पानी पर मुतय्यन थे। हवा के फरिश्ते ने कहा कि आप कहें तो हम आंधी के जरिए इस आग को मुंतशिर कर दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मौके इम्तिहान में हूँ, मुझे तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं है। फिर पानी वाला फरिश्ता आगे बढ़ा और उसने भी कहा कि अगर आप कहे तो पानी बरसा कर आग को बुझा दूं। इरशाद हुआ, जरूरत नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रख कर फेंका गया। वो हवा में उलटते पुलटते जा रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बढ़कर इस्तकबाल किया और उनसे मुलाकात करके कहा, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुम्हें कोई हाजत है? फरमाया, बेशक है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, मालिक ही की तरफ रुजू करो। कहा, सवाल की जरूरत नहीं, हमारे हाल का उसे इल्म होना ही काफी है। मुख्तसर ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भड़कते हुए शोलों में पहुंचे, फिर नीचे की तरफ जाकर आग के दरमियान वारिद हुए। फरमाने बारी आग को पहुंच चुका था। ये आग सलामती के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जा। आग गुलजार बनी। फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीन पर बिठा दिया। उनके बैठते ही उनके करीब चश्मा जारी हो गया। गुलाब और नरगिस के फूल खिल गए। एक रिवायत में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ही उस आग में पहुंचे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फौरन एक तख्त बिछाकर उस पर उन्हें बिठाया। उनके तख्त पर बैठते ही चश्मे आग जारी हुआ और गर्दा गर्द फूलों के दरख्त नुमाया हो गए। एक रिवायत में है कि जली हुई लकड़ियों के बाकी हिस्से जो जलने से रह गए थे, उसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन में नस्ब कर दिए और इससे हरे भरे दरख्त पैदा हो गए जिनमें ताजे फल लगे हुए थे। एक रिवायत में है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए तो छिपकली दूर बैठी हुई आग को फूंक रही थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसे मारने का हुक्म दिया है। और मेंढक दूर ही से पानी लेकर आग में फेंक रहा था ताकि वो आग बुझ जाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको मारने से मना फरमाया है। अलगर्ज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा से आग के गुलजार में बैठे हुए खुदा को याद कर रहे थे। एक रिवायत की बिना पर 3 दिन, एक रिवायत की बिना पर 7 दिन उसी आग के गुलजार में रहे। इसी दौरान में नमरूद ने अपने मीनार पर जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जो निगाह की तो उन्हें जन्नत नुमा गुलजार में बैठा हुआ देखा। उसे ख्याल था कि वो जल भूनकर राख बन गए होंगे। जब उसने उन्हें इस हाल में देखा तो मुतअज्जिब भी हुआ और मुतवहिज भी, क्योंकि उससे ये ख्याल पैदा हो गया कि अब जो कि ये आग नहीं जला सके और अब सही और सालिम बरामद होंगे तो लाजमन मेरे लिए और ज्यादा मुज़र साबित होंगे। यही कुछ सोचकर उसने अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि मंजनी के जरिए से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पत्थर फेंके जाए। चुनांचे बहुत बड़े बड़े पत्थर उसमें रख कर फेंके गए। वो पत्थर बरिवायत अजैबुल कस्सा सफ़ा नंबर 88 में है, एक मकाम पर हवा में जमा हो गए और बहुक्म खुदा बादलों की सूरत इख्तियार करके बरसने लगे, जिसके नतीजे में उस हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था, जिस कदर भी आग उस तवील 4 दीवारी में थी, सब बुझ गई। अल्लामा मजलिसी तहरीर फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो मंजनीक बनाई गई
वो वही थी जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था। ये मंजनीक मकाम कूसा में जो कुफा के एक गांव में कंजारा में वाक़या है, शैतान के हाथों बनी थी। हयातुल कलूब के सफ़ा नंबर 90 में तहरीर फरमाया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हाथ पाँव बांध कर मंजनीक में रखा तो उनका चचा जो हुकूमत नमरूद का वजीर था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और उनके रूह मुबारक पर एक तमांचा मार कर कहा कि अब भी अपने हरकत से बाज आ जा और नमरूद की खुदाई को तस्लीम कर ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो खुदा है खुदाई उसी की तस्लीम की जाएगी और उसी की तस्लीम शुदा है, ये न खुदा है न इसकी खुदाई मानी जा सकती है। एक हदीस में है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई तो इसका असर 3 दिन तक दुनिया की तमाम आग पर रहा और इसमें ठंडक आ गई थी। मौरखीन का बयान है कि आतिश नमरूद के गुलजार बनने के वाक़यात और उस वक्त के दीगर हालात देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम और जनाबे सारा ने ईमान जाहिर किया और नमरूद की बेटी राजा भी ईमान लाई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा जाद भाई थे और जनाबे सारा चचा जाद बहन थी। नमरूद की बेटी के ईमान लाने के मुतालिक अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती बहावला मारुजुन नबूवत लिखते हैं कि नमरूद की बेटी राजा बड़ी जीरक और होशियार लड़की थी। उसने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने को देखा तो बड़े इसरार से अपने वालिद को इस बात पर राजी किया कि इसे उस मीनार पर जाने की इजाजत दी जाए जिस पर सब लोग बैठकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। चुनांचे नमरूद ने इजाजत दे दी और वो उस मीनार पर जा पहुंची। वहाँ पहुंचकर उसने हालात देखे। उसे ये देखकर बड़ा तअज्जुब हुआ कि आग गुलजार बन गई है और बल्लों का तख्त उनके लिए लाया गया है। उसने बेसाख्ता आवाज दी, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं ये क्या देख रही हूँ? ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह ताला की मारिफत हो उसे आग जला नहीं सकती। उसने कहा कि क्या मुझे इजाजत है कि मैं इस आग में आप तक आ जाऊं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कलमा पढ़ ले तो हमारे पास आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतरकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आग के करीब पहुंची उसे आग के किसी हिस्से ने नुकसान न पहुंचाया और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। वहाँ पहुंचकर उसने अपने ईमान की तजदीद की और वापस अपने घर बाप के पास चली गई। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाक़या मालूम हुआ तो वो आग बगोला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर ले। उसने इनकार किया। फिर उसने तकलीफ की और डराया मगर उसने परवाह न की। नमरूद जब उसे समझाने से आजिज हो गया तो उसने अपनी बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने उसे धूप में लेटाकर उसके हाथ और पाँव में मेख ठोंक दिए। इधर जल्लादों ने उसे सजा दी, उधर खुदावंद मुतआल ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन पर मेरी एक ईमानदार बंदी तो वहाँ से तंदुरुस्त करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दो। ये वाक़या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचा दिया। चनांचे वो उन्हीं के पास रहे। बिला आखिर आयब अलैहिस्सलाम ने उसकी शादी अपने एक फर्जंद मरियम से साथ करा दी जो कि सारा हाजरा के अलावा कतूरा बीबी से था। अल्लाह ताला ने उसे ये इज्जत दे के उसके सिलसिले रहम में बहुत से अंबिया कराम को पैदा किया। जी तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और बेल के बटन को भी ऑन कर दे